जय एवरीवन, दिस इज अंशुल पटेल फ्रॉम एजुकेशन हब और आज हम लोग देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर यानी इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960 को। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया क्लासेस में और ये अभी एक क्विक रिव्यू है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। India Events after 1960. Introduction. India became independent in August 1947. India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. So we know कि भाई हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंट हुए फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिश एंड 1950 में 1947 में इंडिपेंडेंट हुए और 1950 में हम लोग क्या हो गए, रिपब्लिक हो गए। इट मींस कि भाई हमने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद हम लोग रिपब्लिक हो गए। उसके अलावा सोवरेन, फेडरल, इसी प्रकार से सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी हम एज अ नेशन कहलाए। ओके, लेट्स सी आगे क्या हुआ। The Indian society is multicultural and people of various languages, religions, ethnicities and castes live together. Okay, so we see कि भाई in the Indian society the multicultural and the people of the various language, religion, ethnicity and the caste live together. We know कि भाई हमारे देश में बहुत ज़्यादा कल्चरल विविधता और काफ़ी बड़े रूप में अलग अलग लैंग्वेजेस, एथनिक, कल्चर, ड्रेस, फूड और ऐसी सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे हम कहते हैं विविधता में एकता। चलिए आगे देखते हैं। During the initial period after independence, India needed to solve different issues of economic, political and social development. The establishment of the Planning Commission and emphasis on industrialization was a... See, after becoming independent from British rule, India faces many problems like economic problems, political problems, social development, planning commissions, industrialization and development. These were few points that where India has to work. And India को ऐसे ही कुछ points थे जहाँ पे work करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। Because जब हम ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुए तो हम लोग बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह थे और न्यू बॉर्न बेबी को कई सारी चीज़ें सीखनी होती है, चलना सीखना होता है, लैंग्वेज सीखनी होती है और लाइफ में कैसे जीते हैं इन सभी चीज़ों को सीखना होता है। तो इसी तरह से we were newborn in 1947. Let's see. Aims to achieve economic development and to eliminate poverty in India. Successful conduct of elections and faith in democratic traditions made it possible for us to achieve political stability. See, after independence, as we were democratic, so जब भी हम डेमोक्रेटिक नेशन में होते हैं यानी स्वतंत्र होते हैं और रिपब्लिक होते हैं तो कोई भी देश अगर डेमोक्रेटिक है तो उसमें चुनाव होने चाहिए। चुनाव होंगे और जो कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होंगे वो हम एज अ पीपल सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे लिए ही कानून और नियम बनाते हैं जो कि हम पर ही इम्प्लीमेंट होते हैं। सो फेयरफुल चुनाव होना यानी इलेक्शंस होना क्या था, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। सो दैट्स वाई हमने कई सारे फेयरफुल इलेक्शंस करवाए और कई सारे पीएम्स हमने भारत को दिए। उसमें से काफ़ी प्रोमिनेंट आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। लेट्स सी अहेड। At the same time, several social reforms, including policies and programs for the weaker sections of the society, were sought to be implemented. The 1960s. So after 1950, as we were selected, few of the president, like first president of India was Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first president of Prime Minister of India. Sorry, he was the first Prime Minister of India. And after that, the new decade starts, which was 1960. So let's see कि 1960 के decade में दशक में क्या-क्या हुआ और क्या किस तरह की राजनीतिक स्थितियाँ बनी और कैसे पॉलिटिकल लीडर्स ने उसको टैकल किया, क्या-क्या प्रॉब्लम्स इंडिया के सामने थे, कैसे उन्होंने सॉल्व किया, कैसे उनके डिसीजंस ने इंडिया को एक बेटर प्लेस बनाया। Let's see ahead. In the decade of the 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. The regions of Goa, Diu and Daman were freed from Portuguese rule and became parts of the Indian Federation. The tensions between India and China
on the northern border, which had been rising since 1950, culminated in the war of 1962 between two countries. See, there were many challenges. Like जब इंडिया को ब्रिटिश ने अपने रूल से आज़ाद किया, कह सकते हैं जब हमने ब्रिटिश को अपने देश से भगाया, तो फिर भी कुछ और ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने पूरी तरह से इंडिया को छोड़ा था क्या? नहीं। ऐसे कुछ कंट्रीज बचे हुए थे यूरोपियंस जिन्होंने इंडिया को पूरी तरह से छोड़ा नहीं था। मतलब लाइक पुर्तगीज, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सभी ऐसे कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने पूरी तरह से इंडिया को छोड़ा था क्या? नहीं। कुछ पार्ट ऑफ इंडिया लाइक गोवा, दमन द्वीप, दादर हवेली and some other like Malabar regions वगैरह वगैरह, these were under the capture of Portuguese government. So after 1960, in the decade of 60s, हमने क्या किया? पुर्तगीज को इंडिया से भगाया, गोवा से पुर्तगीज को भगाया और गोवा को इंडिया का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बनाया। उसके बाद 1960s में यानी 1950 के वक्त में चाइना के साथ इंडिया के कुछ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे। बॉर्डर के साथ कई बार झगड़ा हुआ करता था। चाइना चाहता था, क्योंकि उनकी ऐसी नीति है कि वो विस्तारवादी नीति पर काम कर रहे हैं, मतलब जो जमीन है जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर होगा, ऐसा चाइना का मानना है। सो इसी रीज़न के साथ चाइना कई बार क्लेम करता है इंडिया के कुछ रीजन्स को, लाइक लद्दाख, सियाचिन एंड सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो हमेशा ही ऐसे कुछ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स चाइना के साथ इंडिया के रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमने 1962 का वॉर देखा। लेट्स सी आगे क्या हुआ। This war was fought in the region of McMahon Line. After India became independent, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru led the country. Yes. See, after independence, the first Prime Minister of India was Pandit Jawaharlal Nehru. Okay, let's see ahead. He was the architect of India's foreign policy. His contribution to the social and economic development of India is significant. Jawaharlal Nehru passed away in 1964. Of course. He was the first Prime Minister. He served for India for 17 years. He served India for 17 years. मतलब 17 सालों के लिए उन्होंने भारत देश की सेवा की और आखिर में 1964 को वो स्वर्गवासी हो गए। इसके बाद हमने इंडिया को नया पीएम दिया। आगे देखते हैं वो कौन है। Lal Bahadur Shastri succeeded him and became the next Prime Minister of India. During his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issue in 1965. Yes, boss. After Jawaharlal Nehru, we came with the new Prime Minister of India, who was Lal Bahadur Shastri, in 1964. Okay, between the Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri, there was an interim Prime Minister. This is a term which is specially used for the Prime Minister, which is taken as another part of the Prime Minister, which is known as the Home Minister of India, for some period of time. For in that time, हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए जब कोई भी नया पीएम नहीं होगा, इलेक्शंस जब तक नहीं होते तब तक हम क्या करते हैं, एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं जो कि देश को चलाता है। इसका मैक्सिमम पीरियड 14 डेज का होता है। ओके, लेट्स सी कि भाई जवाहरलाल नेहरू के साथ कैसे कैसे इवेंट। The Soviet Union tried to mediate between the two countries. Lal Bahadur Shastri gave the slogan "Jai Jawan, Jai Kisan," with which he highlighted the importance of Indian soldiers and Indian farmers. See, जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान, जिससे उन्होंने बताया कि भाई इंडिया एज अ नेशन में सोल्जर का और फार्मर्स का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ये काफी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। फार्मर्स कि भाई फार्मर्स क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ऑफ द फूड। जब तक फूड नहीं होगा एज अ नेशन कोई रन कर सकता है क्या? नहीं। और सोल्जर्स क्यों जरूरत है? देश की इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी की। जब तक सिक्योर नहीं हो कोई भी कंट्री तो कंट्री कहलाएगा क्या? ऑलमोस्ट हर टाइम कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स उनके सामने रहेंगे। वो इंटरनेशनल हो सकते हैं या बॉर्डर लाइक सिचुएशंस हो सकती है जिसमें हमको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो भाई लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया उसमें उन्होंने बताया कि भाई सोल्जर्स
और किसान दोनों ही इंडिया के लिए काफी ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी हियर। Lal Bahadur Shastri breathed his last at Tashkent in 1966. बॉस इन 1966 में ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई। इसके पीछे कुछ कंट्रोवर्सीज भी है कि भाई काफी अननोन तरीके से उनकी डेथ हुई, किसी को परफेक्ट रीजन नहीं पता था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उस वक्त इंडिया में, जिसके कारण लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु का सही कारण हमको पता नहीं चल पाया। अभी भी वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल ऐसा टॉपिक है और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किया इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। लाइक ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत इन्होंने ही करवाई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत करने में इनकी मदद की डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की मदद से इन्होंने इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी जब इंडिया प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में काफ़ी कमज़ोर था, तब हाइब्रिड हाई यील्डिंग सीड्स के द्वारा ऐसी फसल उगाई गई डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रयासों से कि भाई इंडिया में काफ़ी कम समय में, काफ़ी कम जगह में और काफ़ी कम मेहनत में काफ़ी ज़्यादा फसल उगाई जाने लगी। ओके, ही वाज द लाल बहादुर शास्त्री। लेट्स सी हु इज नेक्स्ट। Indira Gandhi became the Prime Minister of India in 1966. Boss. During See, after Lal Bahadur Shastri, there was another interim Prime Minister who was the same as after the Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru के बाद जो interim Prime Minister बने थे मोरारजी देसाई, वही अगेन फिर से क्या बने, इंडिया के सेकेंड इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने, अगेन फॉर 13 डेज। ओके, उनके बाद फिर से लोकसभा चुनाव कराए गए और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को इंडिया का थर्ड पीएम चुना गया, जो कि दो अलग अलग कंसेक्यूटिव टाइम्स में इंडिया की एज अ पीएम सर्व कर चुकी थी और ये फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया भी रह चुकी है। ओके, लेट्स सी अहेड। a tenure, Pakistan's oppressive policies in East Pakistan resulted in a big movement there. This movement was led by Sheikh Mujibur Rahman and his organization, Mukti Bahini. This crisis in East Pakistan affected India as well, because millions of refugees came to India. Boss. So there was a situation in East Pakistan. As we know, after the independence of India in 1947, मतलब जब 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया के कई सारे टुकड़े हुए, इंडिया कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ गया, लाइक वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया एंड अनदर वाज ईस्ट पाकिस्तान। सो 3 पार्ट्स में इंडिया बढ़ गया, बाद में नीचे साउथ में श्रीलंका, इसके अलावा म्यांमार, इंडोनेशिया, बर्मा, नेपाल, भूटान, ऐसे अलग अलग कंट्रीज इंडिया से इमर्ज आउट हुए। सी, तो भाई जब ईस्ट पाकिस्तान था उनकी गवर्निंग पॉलिसीज कुछ ऐसी थी जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। मतलब पीपल के जो, जैसा मानते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेसी है तो वो पीपल्स के लिए बात करती है, लोगों के लिए बात करती है, बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो पीपल्स के अगेंस्ट थी। लाइक उन्होंने एक रूल इम्प्लीमेंट किया था ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश कहलाता है। सी, तो वहाँ के मल्टीपल जो लोग थे जिसको मेजॉरिटी बोलते हैं वो बांग्ला स्पीकिंग मेजॉरिटी थी, क्योंकि वो मुसलमान होने के कारण या हिंदू होने के कारण ऐसा वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बट वो सभी बांग्ला स्पीकिंग थे। सो इसके कारण जब वो बांग्ला स्पीकिंग बोल रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट उन पे उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज इम्पोज कर रही है, तो वहाँ की जनता में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह देखा गया और जनता ने एक विद्रोह किया सरकार के खिलाफ। लेकिन जब ये विद्रोह काफ़ी ज़्यादा बढ़ा तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, उन पर हथियारों का इस्तेमाल करना, उनको नज़रबंद करना, उनके जो भी प्रमुख नेता हैं जो कि बांग्ला को एज अ नेशनल लैंग्वेज की मांग कर रहे थे उन सभी को जेल में डालना, इन सभी प्रक्रियाओं के कारण वहाँ के लोग काफ़ी त्रासित हो गए और परेशान हो गए। इसके बाद उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि भाई जो कि इंडिया है उनके जस्ट बगल में, वहाँ पे जाकर शरण लेना शुरू कर दिया। काफ़ी सारे वहाँ से लोग भाग कर अपने ईस्ट पाकिस्तान से भागकर इंडिया में आ रहे थे एज अ माइग्रेंट। सो ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी इंडिया के लिए। इसके अलावा जब पाकिस्तानी सोल्जर्स और एयरफोर्स इंडिया से होती हुई बांग्लादेश जाती थी तो ये एक अलग थ्रेट था कि भाई कहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी कैन इफेक्ट ऑन अस, उसका कोई इफेक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है। सो इन सभी रीजंस के
जिसके कारण इंडिया को इसमें कूदना पड़ा और जो वहाँ के बांग्ला पीपल्स थे, जो वहाँ के नेटिव पीपल्स थे, उनकी मदद करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने एक मूवमेंट चला के रखा था, एक आंदोलन चला के रखा था जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। क्या नाम था उसका? मुक्ति वाहिनी। तो बांग्ला पीपल्स ने अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने क्या कहा कि हम लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट को गिरा देंगे और हम लोग खुद की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चलाएंगे, जिसका एक मूवमेंट, एक आंदोलन बनाया गया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। सो मुक्ति वाहिनी की हेल्प से इंडिया की गवर्नमेंट, जब इंडिया की पीएम थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोकल पीपल्स, इंडिया की सोल्जर्स, इंडिया के सोल्जर्स, बांग्ला रीजन के कुछ लोकल पीपल्स, इन सभी के साथ मिलकर बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कराया और उसका एक नया देश जो बनके तैयार हुआ 1971 में एज अ न्यू कंट्री व्हिच वाज बांग्लादेश। सो लेट्स सी अहेड। 1970s. The 1971 war between India and Pakistan led to the creation of an independent country called Bangladesh. As a part of India's policy to use atomic energy for peaceful purposes, India successfully carried out an underground test of an atomic device at Pokhran in Rajasthan in 1974. See, after the creation of Bangladesh, जब हमने 1971 को बांग्लादेश एक ऐसा नया देश क्रिएट किया, पाकिस्तान से अलग कर दिया उसे, उसके बाद हमने इंडिया को परमाणु शक्ति से सुसज्जित किया। इसका मतलब कि भाई इंडिया के पास पहले कोई भी न्यूक्लियर वेपन या एटॉमिक वेपन्स नहीं हुआ करते थे, बट हमने ऐसे कई सारे प्रयास किए जिसके बाद हम लोग एटॉमिक पावर बने इन दी डेकेड ऑफ 70s, 1970s. Okay, let's see ahead. In 1974. In 1975, the people of Sikkim voted for joining the Indian Republic and Sikkim became a full-fledged state in the Indian Federation. Yes. So, in 1975, सिक्किम के लोगों ने एक चुनाव किया और उनसे पूछा गया कि भाई आप इंडिपेंडेंट नेशन रहोगे, क्योंकि उनकी जो एरिया है या उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम थी एक पर्टिकुलर नेशन चलाने के लिए। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप अकेले रहना चाहते हैं या उसके अलावा किसी और कंट्री लाइक चाइना, भूटान, नेपाल या इंडिया, बांग्लादेश में तो पॉसिबल नहीं है, तो भाई इन 4 कंट्रीज में से आप किस कंट्री में मिलना चाहते हैं। तब सिक्किम ने कहा कि वी विल गो फॉर इंडिया, हम इंडिया के साथ जाएंगे। और 1975 में जो चुनाव हुए उसके बाद सिक्किम इंडियन फेडरेशन का एक अभिन्न अंग बन गया। ओके, लेट्स सी अहेड। During this decade, the political situation in India grew unstable. The Allahabad High Court gave the verdict in 1974 that Indira Gandhi, the then Prime Minister, had misused. Okay, so भाई 1974 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्शंस हुए थे 1942 के, तब इंदिरा गांधी ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया और जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज होते हैं उसका इस्तेमाल किया पावर में फिर से आने के लिए। और ये वर्डिक्ट ने देश के अंदर एक अलग सी हलचल जागृत कर दी थी और कई सारी अपोजिशन पार्टियां इंदिरा गांधी की कांग्रेस के खिलाफ तैयार हो गई थी कि उनकी सरकार गिराई जाए। Okay, let's see ahead कि क्या the government machinery during her election campaign. It led to nationwide strikes and protests. During this period, the situation became more complicated due to the movement led by Jayaprakash Narayan. Okay, तो भाई इस मूवमेंट की जो कांग्रेस के खिलाफ थी उसको लीड किया था जयप्रकाश नारायण ने, जो कि जनता दल के काफी बड़े नेता थे। ऐसी है कि फिर उनके साथ आगे क्या हुआ। The situation of law and order in the country worsened and the government declared a state of national emergency on the basis of the constitutional provisions related to emergency. See, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को ये हक होता है, नॉट द प्राइम मिनिस्टर बट द प्रेसिडेंट को ये अधिकार होता है कि भाई इन दी स्टेट ऑफ वॉर वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं।
सो इंदिरा गांधी ने उसका यूज़ किया और नेशन में, पूरे राष्ट्र में एक नेशन वाइड इमरजेंसी की घोषणा कर दी। आइए देखते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस। Emergency. During this turbulent period, the fundamental rights of Indian citizens were suspended. Due to the emergency, the Indian administration became disciplined, but the human rights were restricted. The period of national emergency lasted from 1975 to 1977, and after that, general elections were conducted. ओके, सो द पीरियड ऑफ इमरजेंसी मतलब जब आपातकालीन स्थिति भारत में स्थापित की गई, उसका टाइम पीरियड था फ्रॉम 1975 टू 1977। इस पीरियड में लोगों के जो अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा हनन किया गया। इसका मतलब कि भाई किसी भी एक व्यक्ति के पास उसके कोई भी हक नहीं थे, कोई भी फंडामेंटल राइट्स थे क्या? नहीं, वो सभी एक तरह से कैदी हुआ करते हैं। और भाई जब ये पीरियड खत्म हुआ इमरजेंसी का, जो कि लगभग 2 साल चला, उसके बाद फिर से जनरल इलेक्शन करवाए गए और इस बार इंदिरा गांधी की सरकार पूरी तरह से गिर गई और जनता दल की कोलैबोरेशन में एक न्यू गवर्नमेंट आई जिसने इंडिया को रूल किया। बट ड्यू टू सम इंटरनल डिफरेंसेस उनकी गवर्नमेंट ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए। लेट्स सी अहेड। On the backdrop of the emergency, many opposition parties came together and formed a party called the Janata Party. The Congress Party, led by Indira Gandhi, was roundly defeated by this newly formed Janata Party. Morarji Desai became the Prime Minister, but under his leadership, the Janata Party government could not last long due to internal differences. Boss. बिकॉज इमरजेंसी के बाद जब उनके ऊपर एक वर्डिक्ट आया था इंदिरा गांधी के ऊपर कि भाई उन्होंने घोटाला किया है, आपको याद होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1974 में एक वर्डिक्ट आया था, जिसके बाद उनको कहा गया कि वो इसके बाद अब 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती, किसी प्रकार की कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती। तो उन्होंने फिर अपनी बेटी यानी इंदिरा गांधी को मौका दिया, बट इंदिरा गांधी उस वक्त न्यू थी पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, इसीलिए वो हार गई। और मोरारजी देसाई ने और उनकी टीम ने मिलकर एक नई गवर्नमेंट पार्टी कोलैबोरेशन गवर्नमेंट बनाया, जिसके नए पीएम बने चरण सिंह, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई उनकी गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस। Charan Singh succeeded him, but even his government was a short-lived one. Elections were conducted once again in 1980, and the Congress Party, under the leadership of Indira Gandhi, came to power again. Yes, again 1980s में फिर से इलेक्शन करवाए गए, लेकिन इस बार मोरारजी देसाई और चरण सिंह के बाद जब नई गवर्नमेंट बनी, तो इसके नए पीएम बने अगेन इंदिरा गांधी। Let's see again. The 1980s. During this decade, the Indian political system faced many new challenges. The Sikhs in Punjab demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive. See, like Pakistan एक independent country बना for the Muslim majority और Islam peoples. Again, बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का ही पार्ट था वो भी इंडिपेंडेंट हुआ। तो ये सभी चीज़ें देखकर कुछ पंजाबी पीपल्स जो कि सिख थे, उन्होंने भी अपने एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग शुरू कर दी। यानी वो चाहते थे कि जैसे मुस्लिम्स का एक इंडिपेंडेंट नेशन है, उसके अलावा बांग्लादेश भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी अलग से नेशन है, वैसे ही सिख मेजॉरिटी का एक अलग से नेशन होना चाहिए। तो उन्होंने अपने एक अलग कंट्री की मांग की, जिसका उन्होंने नाम रखा खालिस्तान। बट ऐसा कोई कंट्री बन पाया नहीं। लेट्स सी हेड फिर क्या हुआ। Pakistan had lent its support to this movement. जो खालिस्तानी मूवमेंट था, ये इंडिया को ब्रेक करने वाला था। काफ़ी डिस्ट्रक्टिव ऐसा मूवमेंट हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा हड़कंप, मारपीट, जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हार्म करना, ये सब चीज़ें वहाँ पे शुरू हो गई इस मूवमेंट के साथ। बट इस मूवमेंट को इंडिया जो कि अपोज कर रहा था, बट पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, बिकॉज पाकिस्तान ऑलवेज वांट कि इंडिया क्या हो जाए, इस तरह से कमज़ोर या छोटा हो जाए।
तो भाई पाकिस्तान ने इन मूवमेंट्स को काफी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसके कारण इंडिया का काफी ज़्यादा लॉस हुआ, जान माल की हानि काफी ज़्यादा हुई। An army was sent into Golden Temple at Amritsar, a holy shrine on the 6th in 1984, to evict the terrorists who had allegedly taken shelter there. Okay, so पाकिस्तान ने जिस तरह से खालिस्तानियों की मदद की, उनका तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने हथियार, टेररिस्ट, ये सब चीज़ें, बॉम्ब और जो भी एमिनेशंस लगते हैं डिस्ट्रक्शन फैलाने के लिए, ये सभी चीज़ें पंजाब के कुछ जो रिबेलियन पीपल्स हैं उनको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। इसके अलावा वहाँ से जो टेररिस्ट होते हैं उसको इंपोर्ट करना इंडिया में शुरू कर दिया। अब क्योंकि उन टेररिस्ट ने अमृतसर, जो कि एक होली श्राइन है, एक काफ़ी धार्मिक स्थल है सिखों का, वहाँ पे शरण ले लिया था और उसको अपने कब्जे में ले लिया था, यानी हाईजैक कर दिया था। सो भाई उसके टेररिस्ट के हाईजैक से अमृतसर को छुड़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे आर्मी भेजी और फिर बाद में उन टेररिस्ट को वहाँ पे टेक डाउन किया गया। तो ऐसी है कि फिर क्या हुआ? One of the 6 bodyguards in Indira Gandhi's personal security assassinated her. Okay, see, खालिस्तानी मूवमेंट में जब आर्मी ने अमृतसर होली टेम्पल पे अटैक किया तो उसमें कई सारा पार्ट जो है टेम्पल का डिमोलिश हुआ। इससे कई सारे सिखों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हुई, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी, जो कि उस वक्त यहाँ की पीएम थी, उनका असैसिनेशन कर दिया। उनके असैसिनेशन में 2 उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स जो कि सिख थे वो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने उन्हें शूट आउट करके उनकी जान ले ली। During this period, an organization called United Liberation Front of Assam, ULFA, carried on a major movement in northeast India. See, just after the death of Prime Minister Indira Gandhi, यहाँ पर इंडिया में एक नया मूवमेंट शुरू हो गया। 1974 के बाद से ही यहाँ पे एक नया मूवमेंट, 18 के बाद से ही एक नया मूवमेंट शुरू हो गया, जो कि असम को एज अ फ्री नेशन, एज अ फ्री पार्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करने के लिए वहाँ पे मांग शुरू हो गई। और वहाँ पे कई सारे टेररिस्ट यानी आर्म्ड पीपल्स ने इंडियन गवर्नमेंट के लोगों को मारना शुरू किया, जिसके आंसर में इंडिया ने भी अपने सोल्जर्स को वहाँ एम्प्लॉय किया और ULFA, जो कि एक एसोसिएशन था, जिन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था जिसका नाम था यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जो कि इंडिपेंडेंट असम की मांग कर रहे थे, उन्हें फिर टेक डाउन किया गया। India. Right after Indira Gandhi's assassination in 1984, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. So right after the death of Indira Gandhi, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई in 1984, तो उनके बाद नए जो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के वो थे राजीव गांधी। लेट्स से उनके सामने कैसे नए चैलेंजेस थे जिनको उन्होंने किस तरह से टैकल किया, हैंडल किया। ओके, He tried to make several reforms in the field of Indian economy and that of science and technology. He took अब उनके सामने कई नए चैलेंजेस थे जिन्होंने उन्होंने टैकल किया। उसमें क्या थे? इंडिया का मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिसोर्स बेस्ड एग्रीकल्चर ग्रोथ और मेकिंग इंडिया ग्रेट पावर इन इंडिया। ठीक है, so late in solving the issues of the Tamil minority in Sri Lanka. He promoted the idea of united Sri Lanka with internal. Okay, see, श्रीलंका में कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू थे उस वक्त। उनके आने के बाद से ही श्रीलंका में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे। क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे? कि भाई श्रीलंका में 2 मेजॉरिटी पीपल्स हैं। एक तो है जो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पीकिंग कुछ पर्सन्स है और कुछ है जो तमिलनाडु की तमिल भाषा को बोलते हैं। यानी यहाँ पर 2 प्रकार के लोग रहते हैं, जो तमिल बोलते हैं और जो श्रीलंका की जो ऑफिशियल भाषा है वो बोलते हैं। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि भाई जो तमिल स्पीकिंग पीपल्स हैं वो इंडिया चले जाए, बिकॉज उनके लिए एक अलग से कंट्री है, बट श्रीलंका के जो लोग हैं उनके लिए कोई ऐसा सेपरेट कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या था, केओस का मोमेंट था, काफ़ी ज़्यादा केओस था। तो यहाँ के कई सारे लोग श्रीलंका छोड़कर तमिलनाडु में आने लगे हैं, इंडिया में आने लगे। तो इसी कारण से तमिल पीपल्स
उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अर्ज किया कि भाई ये जो तमिल स्पीकिंग पीपल्स है जो श्रीलंका से यहाँ माइग्रेट होकर आए हैं उनकी हेल्प की जाए, बट गवर्नमेंट ने कोई उनका आंसर नहीं किया और उनके लिए कोई वर्क नहीं किया, जिसके फलस्वरूप राजीव गांधी जी का भी असैसिनेशन हुआ। ऐसी है autonomy to the Tamil community, but his efforts in this regard proved to be in vain. He faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during a defense equipment deal, especially the purchase of long-range cannons from a foreign company called Bofors. सी, जब राजीव गांधी अपनी सत्ता में थे तब उनके ऊपर बोफोर्स घोटाले का मामला दर्ज किया गया। उनको एक आरोपी सिद्ध किया गया कि भाई बोफोर्स घोटाला जो हुआ था उसके लिए आरोपी है। अब क्या हुआ था इस घोटाले में, जब इंडिया ने मतलब हमारे सर्विस जो होती है, डिफेंस सर्विस होती है, उसको हाईटेक करने के लिए फॉरेन कंट्रीज के साथ कुछ डील साइन की थी, जिसमें वो आधुनिक यानी एडवांस एमिनेशंस जो है इंडिया के लिए मंगाने वाले थे, उसमें इन्होंने कुछ घोटाला किया, ऐसा लोगों का कहना था। उनके खिलाफ काफी केसेस किए गए और उसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। Political corruption became a crucial issue in the general elections that followed, and the Congress party was defeated. Several political parties formed a coalition called the Janata Dal, and Vishwanath Pratap Singh became the next Prime Minister of India. सी, ये सभी घोटाले होने के बाद राजीव गांधी जी की जो इमेज थी काफी ज्यादा धूमिल हो गई, यानी अब पीपल्स का जो विश्वास था राजीव गांधी पर वो कम हो गया। इसके बाद इसी बात का फायदा उठाया अदर अपोजिशन पार्टीज ने और उन्होंने कोलैबोरेशन के साथ एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम था जनता दल, और इसके अलावा अन्य जो पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसके नए पीएम बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेट्स सी अहेड कि उनके टाइम पे क्या हुआ। The policy for providing reservations for other backward classes, OBC, is considered to be his most important contribution. He could not continue as Prime Minister due to internal differences in the party. सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहते थे। रिजर्वेशन क्या होता है? ये एक तरह का एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं या सोशली बैकवर्ड हैं या किसी प्रकार से अगर वो बैकवर्ड हैं तो उनको आगे लाने का एक तरीका होता है जिसे हम हिंदी में आरक्षण कहते हैं, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कूल में फ्री में एजुकेशन, जो यूथ होता है उसको जॉब में पर्टिकुलर परसेंटेज की जगह, इसके अलावा जो पॉलिटिक्स होती है, जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइड किया गया। मतलब एक तरह का रिजर्वेशन जो है, ऐसे डिमांड इस तरह की विश्वनाथ प्रताप सिंह, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं कर पाए इस चीज़ को बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल डिफरेंसेस इन देयर पार्टी। ओके, लेट्स सी अहेड। In 1990, Chandrasekhar became the Prime Minister of India. Okay, after him जो नए प्राइम मिनिस्टर बने वो थे चंद्रशेखर। ठीक है, इनके सामने भी कुछ चैलेंजेस आए, देखते हैं उन्होंने उसको किस तरह से टैकल। His government was also short-lived. In 1991, during the election campaign, the terrorist organization in Sri Lanka, Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE, assassinated Rajiv Gandhi. सी, तमिलनाडु में अब जिस तरह से पंजाब में एक खालिस्तानी मूवमेंट चला जहाँ पर वो लोग एज अ इंडिपेंडेंट नेशन की मांग कर रहे थे, उसी तरह से तमिल में भी एक मांग होगी कि भाई तमिल को भी एक फ्री पार्ट ऑफ नेशन, एज अ फ्री नेशन किया जाए, इंडिया से उसको अलग कर दिया जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जो LTTE थी, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTTE? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, जो चाहते थे कि तमिल एज अ फ्री नेशन बने, बट वो पॉसिबल हो पाया क्या? नहीं। उन्होंने इस बात को मनवाने के लिए, गवर्नमेंट से इस बात को मनवाने के लिए राजीव गांधी जो कि एक्स पीएम थे इंडिया के, एक्स पीएम मतलब पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, उनका असैसिनेशन कर दिया। ऐसे है। Towards the end of the decade of 1980s,
the unrest in Jammu and Kashmir had begun. सी इसी तरह से 1980s का डेकेड खत्म होने वाला था, काफी उथल पुथल भरा जो डेकेड था वो धीरे धीरे खत्म होने वाला था। अब जैसे जैसे डेकेड खत्म होने वाला था, यहाँ यानी नॉर्थ में इंडिया के नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर रीजन में एक नए कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। यहाँ पर जो हिंदी स्पीकिंग मेजॉरिटी थी उनको मुस्लिम और जो मेजॉरिटी थी उन्होंने खदेड़ना शुरू किया, कश्मीर से बाहर करना शुरू किया, जिसमें कई सारे कश्मीरी पंडित को अपना घर अपनी जगह छोड़कर नीचे यानी साउथ में इंडिया पर आना पड़ा। लेट्स सी कि भाई इसका टैकल कैसे किया गया नेक्स्ट सेंचुरी में, नेक्स्ट डेकेड में इन 1990s। The terrorist activities that forced the Kashmiri Pandits to leave the valley. This problem grew serious day by day, and today it has taken the form of terrorism. The changes after So it was all about 1980s. 1980s के डेकेड में काफी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बट इंडिया ने उसको टैकल करने की हर तरीके से कोशिश की। बट फिर भी कश्मीर का जो इशू था उसने टेररिस्ट एंगल ले लिया, मतलब कि भैया कश्मीर में टेररिस्ट की काउंट्स बढ़ने लगी थी और कई सारे टेररिस्ट अटैक्स इंडिया ने कश्मीर रीजन में देखे। इसके अलावा अभी भी वो स्टेट क्या है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और काफ़ी वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं बिटवीन सिटीजन्स, डिफेंस सर्विस एंड टेररिस्ट। इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हमको आज भी देखने को मिलता है। लेट्स सी कि भाई 1990s का जो डेकेड था, 90 का जो दशक था, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे चैलेंजेस इंडिया के सामने आए और कैसे इंडिया उनको टैकल करता गया और चेंज होता गया। 1991. The year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as India. The Soviet Union disintegrated into several different small countries and the Cold War came to an end. Boss, see, इस टाइम में 1990s में जो एक सुपर पावर थी USSR, उसमें ब्रेकडाउन हुआ। जो यूनियन था रशिया का, सोवियत रशिया का, उसमें ब्रेकडाउन हुआ और USSR जो है कई सारे देशों में बढ़ गया। उसमें कई सारे कंट्रीज लाइक यूक्रेन और अन्य जो कंट्रीज थे रशिया से टूटकर अलग हो गए और रशिया क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने नया पीएम देखा इंडिया का जो कि थे PV नरसिम्हा राव। अब उनके सामने कुछ नए प्रकार के चैलेंजेस थे। धीरे धीरे थोड़ा प्रॉब्लम तो कम था, बट एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो धीरे धीरे शांत होने लगे थे, बट इंटरनल प्रॉब्लम्स अभी भी थे इंडिया के सामने जो इंडिया को टैकल करना था। लेट्स सी कि PV नरसिम्हा राव ने किस तरह से In India, the government under the leadership of Prime Minister PV Narasimha Rao initiated many changes in the Indian economy. During this period, the Ram Janmabhoomi and Babri Mosque issue at Ayodhya came to the forefront. See, during his time, राम जन्मभूमि ये एक ऐसा नया जो मुकदमा था, जो नया प्रॉब्लम था, वो इंडिया के सामने आया, जिसमें दो कम्युनिटीज, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज आमने सामने आ गई। बिकॉज बाबरी मस्जिद का वहाँ पे डिमोलिशन हुआ। फिर ऐसा मानते थे हिंदू पीपल्स, हिंदू मेजॉरिटीज की भाई वहाँ पे पहले राम जन्मभूमि थी, बट बाद में औरंगजेब ने उसके ऊपर मॉस्क बनाया जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। फिर उसे तोड़ा गया हिंदू पीपल्स के कारण, तो मुस्लिम पीपल ने आवाज़ उठाई कि भाई ये चीज़ें गलत है और ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ता ही गया। ये कॉन्फ्लिक्ट आगे जाकर 2019 में सॉल्व हुआ। ठीक है, और यही टाइम था PV नरसिम्हा राव का, जिन्होंने कई सारे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स कराए इंडिया में और इंडिया को कहीं ना कहीं थोड़ा और वेल्दी बनाने की उन्होंने कोशिश की। लेट्स सी अहेड कि आगे क्या हुआ। In the elections conducted between 1996 and 1999, no political party got a clear majority in the Lok Sabha. This resulted in 3 governments in a short span of time. Those led by Prime Ministers Atal Bihari Vajpayee, H.D. Deve Gowda and Inder Kumar Gujral were amongst them. Boss, see, after 1990s इस decade में 3 अलग-अलग गवर्नमेंट्स बनी, जिनका नाम अभी आपने देखा, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, H.D. देवे गौड़ा और क्या थे थर्ड PM जो बने, क्या नाम था उनका? इंदर कुमार गुजराल।
तो ये 3 अलग अलग पीएम इंडिया ने फेस किए जो कि 1990s के डेकेड में थे। लेट्स सी कि भाई आगे और क्या चैलेंजेस आए। Finally, in 1999, the National Democratic Alliance came to power under the flag of Bharatiya Janata Party, and Atal Bihari Vajpayee became India's Prime Minister. ओके सी, अब क्या हुआ 1990s में, जो कि काफी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के स्टेबल नए ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन के आए जिन्होंने इनका टाइम पीरियड 3 डिफरेंट टाइम्स के लिए इंडिया के पीएम बने। फर्स्ट टाइम 13 डेज के लिए, सेकेंड टाइम 13 मंथ्स के लिए, एंड थर्ड टाइम 5 इयर्स के लिए उन्होंने कंप्लीट अपना सेशन जो अपना टर्नओवर होता है वो उन्होंने कंप्लीट किया। इनकी जो पार्टी थी भाजपा और इसके अलावा जो अदर पार्टीज थी उन्होंने कोलैबोरेशन में एक नया गवर्नमेंट सिस्टम फॉर्म किया जिसका नाम था, एक अलायंस का नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस अलायंस ने अपनी सरकार बनाई और उसके पीएम बने हर बार अटल बिहारी वाजपेयी। लेट्स सी। Atal Bihari Vajpayee tried to establish a dialogue with Pakistan but was not successful. India conducted a number of nuclear tests in 1998 and declared itself as an atomic power. ओके, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कई सारे शांति समझौते करने की कोशिश की, बट अटल बिहारी वाजपेयी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं रहे, बिकॉज इंडिया ने हर कोशिश की पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड बनाने की, बट पाकिस्तान के एंड से ऐसा कोई भी हमको वादा या कॉन्फिडेंस हमको देखने को नहीं मिला। बट उसके रिप्लाई में अगेन पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है 1999 का वॉर, जो कि कारगिल में लड़ा गया था बिटवीन दी सोल्जर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सी, जब इंडिया इसी कॉन्फ्लिक्ट में था तब इंडिया ने एक मुहिम की, जैसे कि हमने देखा इंदिरा गांधी के टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट पे, जो कि राजस्थान के पोखरण में हुआ था, वो टेस्ट 1 था, बट वो बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो पास नहीं हो पाया, वो सक्सेसफुल नहीं था। बट बाद में क्या हुआ, जब टेस्ट 2 हुआ कितने टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, तब वो टेस्ट क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ और अब इंडिया क्या हो चुका था, न्यूक्लियर पावर बन चुका था। सो ये टाइम था अटल बिहारी वाजपेयी का। आगे देखते हैं क्या हुआ। In 1999, there was another war between India and Pakistan in Kargil region over the Kashmir issue. India defeated Pakistan in this war as well. Yes. Indian economy. सी, 1990s में वॉर हुआ, कारगिल वॉर, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को काफी बुरी तरीके से हराया। तो ये हमने जो 4 डेकेड्स देखे 1960, 1970, 1980 और 1990s, यही 4 डेकेड्स आपको इस चैप्टर में देखने थे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये जो 4 दशक थे, 40 साल का टाइम पीरियड था, काफी ज्यादा क्या था, इनस्टेबल था, और ऐसी प्रॉब्लम आगे जाके नए डेकेड्स में भी देखने को मिले। तो अब देखते हैं चैप्टर को डेकेड्स के अलावा किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से अब देखते हैं कि भाई इन 4 डेकेड्स में क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुए। लेट्स सी अहेड। Right from independence to modernization of economy, economic self-sufficiency and social justice have been the characteristics of Indian economy. India wanted to acquire modernity and self-reliance by establishing industries. We wanted to establish an economy based on social justice through planning. For this, the National Planning Commission was established that would coordinate development through the policy of 5 years plan. See, अब इंडिया के सामने कई सारे चैलेंजेस थे जो 1990s के डेकेड में सॉल्व किए गए। उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन, जो कि क्या था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया आता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री के अंडर आता था, जिसने 5 ईयर प्लानिंग, जो भी क्या करती है, जब भी कोई नया गवर्नमेंट चुन के आती है तो वो अपनी 5 ईयर्स की प्लानिंग लेके आती है अपने साथ, जिसमें वो बताती है कि कैसे देश को इन आगे आने वाले 5 सालों में चलाया जाए। अब इंडस्ट्रीज को इन 5 ईयर प्लान के साथ कोऑर्डिनेट कराने का काम इस कमीशन ने किया, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। लेट्स सी अहेड। 5-year plans.
The Narasimha Rao government started economic reforms from 1991. These economic reforms are called as economic liberalization. The Indian economy flourished as a result of the implementation of this policy. The foreign investment in India increased. Skilled Indian professionals helped reform the Indian इकोनॉमी। सी, अब 1991 जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कई सारे डेवलपमेंट किए, कई सारे ऐसे फैसले लिए जिसके कारण इंडिया और ज़्यादा डेवलप हुआ, जिसमें एक फैसला था लिबरलाइजेशन का, यानी इंडिया के मार्केट को इंटरनेशनल कंट्रीज के लिए खोल देना, कि भाई बाहर की कंट्रीज भी हमारे यहाँ आकर क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा इंडिया ने बाकी जो कंट्रीज थी दुनिया की उसको परमिशन दी और इंडिया में धीरे धीरे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया। economy. The field of information technology opened several avenues of employment in the country. The changes after 1991 are also described as globalization. Science and technology. So अभी तक जो हमने देखा वो था इंडियन इकोनॉमी कि भाई कैसे हमने इकोनॉमिकल लेवल में भी डेवलपमेंट किया एज अ नेशन। अब देखते हैं कि भाई साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसमें किस तरह से इंडिया ने इस सेक्टर में, इस फील्ड में कैसे डेवलपमेंट किया। Two major events must be mentioned while describing India's efforts towards self-reliance. Dr. M.S. Swaminathan is known as the father of the Green Revolution in 1965. He implemented new scientific agricultural techniques and increased the production of food grains. See, in 1965 में with the help of Lal Bahadur Shastri and under the instructions and the surveillance of the Dr. M.S. Swaminathan, इंडिया ने नए रिवॉल्यूशन की शुरुआत की जिसका नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें हाई एंडिंग ब्रीड्स लाई गई और इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो काउंट है उसे बढ़ाया गया। ओके, आइए देखते हैं इसके अलावा और क्या डेवलपमेंट्स हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड में। Experiment in cooperative dairy movement by Dr. Verghese Kurian led to increase of milk production in India. This is called a व्हाइट रिवॉल्यूशन। सो भाई डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ इंडिया ने एक और नए मूवमेंट की तरफ अग्रसर हुआ इंडिया, जिसका नाम था व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें हमने जो भी मिल्क प्रोडक्शन होता है इंडिया में उसको और बढ़ाया और जो भी मिल्क होता है उसको प्रिजर्व करना और उसकी जो कनेक्टिविटी है पूरे इंडिया में बढ़ाना, ये सारे का व्हाइट रिवॉल्यूशन के टाइम पर हुआ। White Revolution. India had also made a lot of progress in the fields of atomic energy and space research. Dr. Homi Bhabha led the foundation of the Indian Atomic Power Program. See, डॉक्टर होमी भाभा, इनका नाम हम लोग एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काफी यूज करते हैं बिकॉज ही वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी सिस्टम। सो इन्होंने इंडिया को एटॉमिक पावर से काफी सुसज्जित करने में और डेवलप करने में मदद की। Let's see ahead. India insisted on using atomic energy for peaceful purposes like generation of electricity, pharmaceuticals and defense. जहाँ पर बाकी देश जब एटॉमिक एनर्जी का डेवलपमेंट करते हैं तो उसे एज अ वॉर वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, बट इंडिया ने अपने इस एटॉमिक एनर्जी सोर्स को इस्तेमाल किया जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए और इंडिया के डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। India has achieved considerable success in space technology as well. In 1975, the first satellite Aryabhatta was launched. Okay, in 1975 में हमने इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया जिसने हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी को भी घूम दिया और इस तरह से हम लोग इंडिया जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में भी धीरे-धीरे आगे बढ़ने की शुरुआत कर दी। Today, India has a successful space program and many satellites
have been launched under this program. India has also made considerable advancement in the telecom sector. Changes in social field. Pause. See. So साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने काफी ज़्यादा डेवलपमेंट किया. इसके अलावा ना सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस रिसर्च सेक्शन, बल्कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में भी हमने काफी ज़्यादा डेवलपमेंट किया. अब इसके बाद देखते हैं कि भाई जो चेंजेस आए सोशल फील्ड में वो कैसे थे. लेट्स सी अहेड. During this period, there were several major changes in the social field in India. Some of the changes are related with the issue of the empowerment of women, and the others are related with the policies regarding the uplift of the deprived sections of the society. To promote the all-round development of women and children, a separate Department of Women and Child Development was created in 1985 under. In 1985, for the development of women and child, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री होती है इंडिया की, उन्होंने एक कमीशन का उद्घाटन किया जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसने वुमेन्स और बच्चों के जो हित होते हैं उसके लिए काम करना शुरू किया ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके. The Ministry of Human Resource Development. Some laws were made to ensure social justice to women and to help the implementation of various schemes in this direction. They include the Prohibition of Dowry Act, Equal Remuneration Act. C. ना सिर्फ स्त्रियों के डेवलपमेंट के लिए बल्कि उसके अलावा कहीं पर भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिससे के कारण स्त्रियों का शोषण हो, ये भी सुनिश्चित किया गया ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें कई सारे ऐसे नए नियम लागू किए गए जिसमें एंटी डोगरी एक्ट, इसके अलावा इक्वल रियम्बर्समेंट एक्ट, इन सभी चीज़ों का उसमें सम्मिलन था. जिसमें डोगरी एक्ट जो कि किसी भी प्रकार का दहेज लेना या देना उसको रोकता है. इसके अलावा इक्वल रियम्बर्समेंट एक्ट जो कि सभी को सेम जो क्वांटिटी होती है उसको अवेल कराता है. मतलब अगर आप लोग काम करते हैं तो सभी को सेम एज अ पेमेंट या जो भी वेज मिलता है उसको सुनिश्चित करता है. अगला है फिर आगे क्या हुआ. As per the 73rd and 74th Constitution Amendments, seats were reserved for women in the local self-government bodies. See, in the 73rd and 74th Amendment of the Constitution, जब 73rd और 74th Amendment हुआ Constitution में, तब वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए कई सारे नए नियम लाए गए, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है जिसे हम पंचायत कहते हैं उसमें स्त्रियों का जो नंबर है उसे बढ़ाने, इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें लड़कियों की पदवी को बढ़ाने के लिए कई सारे कार्य किए गए. वुमेन्स के डेवलपमेंट के बाद एक नया डेवलपमेंट इंडिया में शुरू हुआ कि जो भी काफी बैकवर्ड क्लासेस हैं सोसाइटी के, आइदर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, उनके लिए काफी सारे काम किए गए गवर्नमेंट में. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम रखा गया मंडल कमीशन, जिसको चेयर कर रहे थे बीपी मंडल और उनकी टीम, जिन्होंने रिसर्च किया इंडिया में जाकर अलग अलग जगहों पर विजिट करके सोशली काफ़ी इंटरेक्ट होके लोगों से कि भाई कैसे हम लोग जो सोशली बैकवर्ड पीपल्स हैं, है ना, जो गरीब हैं या जिनके साथ न्याय बराबर नहीं होता, उनको किस तरह से न्याय दिलाया जाए, किस तरह से क्या क्या तरीके हैं हमारे पास कि भाई उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए. ये सारी टेक्निक और ये सारे तरीके उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को सजेस्ट किया. उसके बाद कई सारे लॉज गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए, जिसमें रिजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ था, जिसमें कहा गया कि भाई जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए एजुकेशन में, जॉब्स में, या जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें, गवर्नमेंट के अंदर सीट्स में, ऐसी हर जगह पर स्त्रियों को और जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रयास किए गए, जिसमें बीपी मंडल की जो कमीशन थी, मंडल कमीशन, उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल था. तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ. A reservation was adopted in order to strengthen
the representation of backward sections in various services and institutions. The government passed the Prevention of Atrocities Act in 1989 to enable those belonging to the scheduled castes and tribes to live with dignity and respect, free from fear, violence and oppression of the upper classes. Globalization. Boss. So it was all about the social changes in India. जितने भी social changes हुए, जो developments हुए, उसके बारे में अभी हमने देखा. अब देखते हैं ग्लोबलाइजेशन, जो कि पी.वी. नरसिम्हा राव और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जो कि आगे चल के इंडिया के पीएम भी बने 2004 में. उन्होंने किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को मेन स्ट्रीम में लाया और इंडिया को एक ग्लोबल मार्केट बनाने में मदद किया, और इसमें कैसे इंडिया का डेवलपमेंट हुआ, ये सब चीजें हम आगे देखने वाले हैं इस पार्ट में, ग्लोबलाइजेशन पार्ट में. लेट्स सी अहेड. Globalization brought about many changes in different fields like economy, politics, science and technology, and society and culture. We will discuss some of these changes in the above paragraphs. India has emerged as an important country on the global scene in different spheres. India is an important member of international organizations like G20 and BRICS, BRICS, Brazil, Russia, India, China and South. सी ग्लोबलाइजेशन में इंडिया का इंटरनेशनल कमीशन और ऑर्गेनाइजेशंस में होना काफी इम्पोर्टेंट था. जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसमें इंडिया का प्रेजेंटेशन या जो पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था इंडिया के डेवलपमेंट के लिए. कुछ ऑर्गेनाइजेशन लाइक G20 और ब्रिक्स, इसमें इंडिया काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता है. G20 इसमें 20 नेशंस हैं जो कि डेवलपिंग है. इसमें सभी लोग सभी देशों के डेवलपमेंट की बातें करते हैं, नए नियम लागू करते हैं, जिससे कई तरीके से हम लोग किसी भी नेशन का डेवलपमेंट कर सके. ये सारी बातें उसमें की जाती है. इसके अलावा ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व है, ये सभी कंट्री जो कि एक तरह से डेवलपिंग है, वो अपने अपने ग्रोथ के लिए एक्सचेंजेस जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है काफी सॉफ्टली हो सके और सभी का इसमें डेवलपमेंट हो. ये चीजें सुनिश्चित करते हैं इन सभी इंटरनेशनल ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस में. लेट्स सी अहेड. Africa. India has experienced an important revolution in the field of telecommunication technology. Mobile phones, internet, and the communication facilities based on satellite have spread all across the country. In the political field, India has demonstrated to the world how a stable democracy can function successfully. All this has resulted in a total transformation in the lifestyle of Indians and especially the youth. सी ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में भी काफी ज्यादा डेवलप हुआ. टेलीकम्युनिकेशन में इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, कॉलिंग और ये सारी चीजें जिसमें अलग अलग नए डिवाइसेस और उनके एडवांसमेंट, तो इन सभी फील्ड में इंडिया ने काफी ज्यादा ग्रोथ किया. और इसने जब जब हमने टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में अपग्रेड किया, उसने इंडिया की ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प किया. और इंडिया एक सटल एग्जांपल है वर्ल्ड के सामने कि भी कैसे एक वाइब्रेंट जो अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग एथनिक्स और अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, क्लॉथ, फूड और ये सब चीजें होने के कारण भी एक अच्छे से डेमोक्रेसी रन हो सकती है और सक्सेसफुली रन हो सकती है. ऐसा एग्जांपल इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के सामने स्टैब्लिश किया. सो भाई इंडिया एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज होके आया आने वाले टाइम में. लेट्स सी अहेड. Changes are visible from their dietary habits, clothing, language and beliefs. ओके बॉस. सो सी इस तरह से हमने इस चैप्टर को देखा जिसमें कि भाई इंडिया ने अपने सामने आने वाले सभी चैलेंजेस को टैकल किया और इस तरह से जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने अपने फैसले लेकर, जो भी उन्होंने अच्छे फैसले लिए, उसके कारण इंडिया डेवलप हुआ. तो ये चैप्टर था ऑल अबाउट इवेंट्स आफ्टर 1960. अब हम आगे देखेंगे थर्ड चैप्टर अगले लेक्चर में. फॉर दैट, फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ. दिस इज अर्शद पटेल फ्रॉम एजुकेशन हब.